Hello students, in this video once again I am going to revise the concepts of simple harmonic motion that we had studied in the classroom. In the live lecture also I had explained the concepts of simple harmonic motion, but there were some problems with network, and so I am repeating this lecture with the revision of whatever I had explained in the live lectures, and thereafter we will proceed with the further concepts. In my live lecture, I had discussed with you certain concepts, like for example, I had discussed with you the meaning of period of any periodic phenomena. Time period means what? Time period means the time taken to complete one cycle. The time taken to complete one cycle is called as time period. Time period denoted by T, यूनिट सेकेंड एस. अभी वो कंप्लीट साइकिल एक पूरा सर्कुलर मोशन हो सकता है. मान लो पार्टिकल ने ए से शुरू किया, पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया, वापस ए पर आ गया तो उसने एक साइकिल कंप्लीट किया. या फिर वो ऑसिलेशन हो सकता है. मीन पोजीशन ओ, ए एंड बी आर एक्सट्रीम पोजीशंस. पार्टिकल ओ से ए पर जाता है, ए से वापस ओ पर आता है, ओ से फिर बी पर जाता है, बी से वापस ओ पर आता है. तो ओ, ए, बी एंड अगेन ओ. तो इट हैज़ कंप्लीटेड वन एंटायर ऑसिलेशन. तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगता है वो भी एक टाइम पीरियड होता है. उसके बाद हमने स्टडी किया था फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी is usually denoted by nu, and very often you will see the letter F also. Frequency is number of cycles or oscillations per second. Frequency is number of cycles or oscillations per second. इसका यूनिट है per second, denoted by S inverse, or another unit is hertz, also written in short as Hz. Then we studied about angular frequency. It is denoted by omega. This letter is called as omega. इसका यूनिट रेडियंस पर सेकेंड. जो भी स्टूडेंट्स मेरे लाइव लेक्चर में ठीक से देख नहीं पाए थे, लेक्चर मिस किया, वो अपने अपने वीडियो को पॉज करके ये सारा डिटेल्स फिर से कॉपी कर सकते हो. रेडियंस पर सेकेंड, इन शॉर्ट इट इज़ रिटन एज रेड पर सेकेंड. और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा का फॉर्मूला 2πf. दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर ओमेगा. So that was about some basic concepts that we had studied. Omega is also called as angular velocity. आप जानते हो. So it is defined as, omega को हम define कैसे करेंगे? So it is the amount of the angle या measure of the angle traced by an object in 1 second. एक सेकेंड में वो कितना एंगल ट्रेस करता है, वो उसका फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय ओमेगा, फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू और एफ, एंड टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय टी. प्लीज़ कॉपी दिस फ्रॉम द बोर्ड. अपना वीडियो को पॉज कर लो और इसको कॉपी कर लो, या एटलीस्ट स्क्रीन शॉट ले लो, सो दैट आप बाद में इसको कॉपी कर सकते हो. एंड आई विल प्रोसीड फर्दर. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक वी स्टडीड वॉज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. Equation of simple harmonic motion is written as x of t is equal to a cos omega t plus phi. Usually this is the way we write, but you can also write y of t is equal to a sin omega t plus phi. अब मैंने x of t को a cos omega t plus phi लिखा है. अगर कहीं किसी बुक में आपने ऐसा देख लिया x of t is equal to a sin omega t plus phi, तो ये भी करेक्ट है, ये भी रॉन्ग नहीं है. और y ऑफ t को a cos ओमेगा t प्लस फाइव लिख दिया तो भी इट इज करेक्ट. सो डोंट वरी अबाउट दैट. नाउ व्हेन आई राइट x ऑफ t, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स x इज अ फंक्शन ऑफ t. T is time.
रिमेंबर इट इज नॉट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो एक पूरे साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है, ये टाइम पीरियड नहीं है। इट इज जस्ट द टाइम ऑसिलेशन के बीच में जब कोई टाइम पसार होता है, कोई टाइम इंटरवल होता है, तो वो टाइम है ये। नाउ instead of writing x of t every time, what I will do is I will simply now write it as x, or I will also write it as y. So I can write x is equal to a cos omega t plus phi, or y is equal to a sin omega t plus phi. Now let us understand the different parts of this equation. X is called as displacement. X is called as displacement. A is called amplitude. A is called amplitude. Omega t plus phi is called as phase of simple harmonic motion. So this is the displacement of simple harmonic motion. A is the amplitude of simple harmonic motion. Omega t plus phi is the phase. मैं एक बार फिर से बच्चों simple harmonic motion का मीनिंग रिवाइज कर देता हूँ. What is simple harmonic motion? तो एक बार फिर से शॉर्ट में मैं लिख दूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द मोशन इन विच फोर्स इज proportional टू डिस्प्लेसमेंट. रिमेंबर दिस, फोर्स इज proportional टू डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स एक्ट्स in the direction opposite to displacement. So I will write minus x. Now remember, displacement we are denoting by x, so I can write f is proportional to minus x. That means f is equal to minus kx. Now students, in the live lecture when I discussed, I had not discussed this formula with you. I want you to remember this formula. Force is equal to minus kx, because for a simple harmonic motion, force is directly proportional to displacement and it is inversely, it is in the direction opposite to displacement. मतलब क्या होता है, तो ये जो force होता है ना, इसको हम बोलते हैं restoring force. This force is called restoring force. So actually what happens, जब कोई बॉडी ऑसिलेट करता होता है तब ये फोर्स क्या करता है, उसको पकड़कर वापस लेकर आता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पार्टिकल ये दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में ऑसिलेट करता है, तो जब पार्टिकल बी की तरफ जा रहा होता है, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, तब फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है और पार्टिकल को खींचकर वापस लाने की कोशिश करता है. उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे पार्टिकल ओ से बी की तरफ जाता है, उसकी वेलोसिटी कम होने लगती है. एज द पार्टिकल गोज टूवर्ड्स बी, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस. फिर जब पार्टिकल ए पर आता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम होने लगता है. पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, x, यानी O से B तक का जो डिस्टेंस है वो x होता है. तो जैसे जैसे x बढ़ता है, फोर्स भी बढ़ता है, लेकिन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है. तो हमारा पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना दूर होगा उतना ज़्यादा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा और वो हमारे पार्टिकल को खींचकर वापस ले आएगा. ये आप ऐसे समझ सकते हो. इसको और एक एग्जांपल अगर मैं दे दूं, तो अगर ये कोई दीवार है, वॉल है, और ये कोई फ्रिक्शनलेस प्लेन सरफेस है, हमने वॉल के साथ एक स्प्रिंग को बांध कर रखा है, अटैच करके रखा है, और इस स्प्रिंग के दूसरे एंड पर हमने एक ब्लॉक लगाया है. ये ब्लॉक और ये नीचे जो सरफेस है, इनके बीच में कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता है. अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो ब्लॉक का पोजीशन यहाँ आ जाएगा, और फिर जब हम रिलीज करेंगे तो ब्लॉक यहाँ आएगा. अब ये दो पोजीशंस के बीच में ब्लॉक ऑसिलेट करता है, ये उसका मेन पोजीशन है. तो ब्लॉक ओ से ए पर आता है, वापस ओ पर आता है, फिर बी पर आता है, फिर ओ पर आता है. अब होता क्या है बच्चों, व्हाट हैपन्स व्हेन द ब्लॉक comes from O to A, the spring is compressed. So what happens? There is a restoring force which is trying to push the block away from A, and so the block tries to go back to O. But then there is inertia
और उस इनर्शिया के वजह से ओ पर आने के बाद ब्लॉक रुक नहीं जाता है, वो आगे बढ़ता है और बी तक पहुंचता है। अब क्या होता है, जैसे ही ब्लॉक बी पर जाने लगता है स्प्रिंग खींचती है, स्प्रिंग में एलोंगेशन होता है, द स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेच्ड। जब स्प्रिंग खींचती है तब क्या होता है, फिर से एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा और वो ब्लॉक को वापस अपनी तरफ खींच कर लाने की कोशिश करेगा ओ पर। अब क्योंकि फ्रिक्शन तो नहीं है, ये कोई भी डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं। सो नाउ बिकॉज देर आर नो अदर डिसिपेटिव फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन और एनी अदर सच फोर्सेस, व्हाट हैपेंस, एज द ब्लॉक कम्स टू ओ, बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट गोज फर्दर टू ए। जब ब्लॉक वापस ए पर आता है तो फिर से स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाएगा, स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाएगा तो फिर से एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा जो वापस उसको धक्का मारेगा और ये सारा का सारा प्रोसेस चलता रहता है। So students, there is a restoring force which is directly proportional to displacement. Displacement क्या होता है, distance from the mean position. What is displacement? So आप ये भी याद रखो, displacement is the distance from mean position. और जैसे जैसे मीन पोजीशन से ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, हमारा पार्टिकल जैसे जैसे मीन पोजीशन से दूर 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 होता जाएगा, वैसे वैसे ये फोर्स भी बढ़ता जाएगा और ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, इसलिए हमारे पार्टिकल की स्पीड कम होती जाएगी और फाइनली जब हमारा पार्टिकल बी पर पहुंच जाएगा उसकी स्पीड 0 हो जाएगी और फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो फोर्स मैक्सिमम है, लेकिन ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है और हमारा पार्टिकल वापस आने लगता है। अब जब वापस आने लगता है तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कम होने लगता है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ओ टू बी वो अब डिक्रीज हो रहा है। पार्टिकल जब वापस आ रहा है तो वापस आते आते जैसे जैसे वो ओ पर पहुंचता है, ओ पर आने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, एंड सो फोर्स मैक्सिमम हो जाता है। फोर्स मैक्सिमम हो जाता है तो वेलोसिटी इज ऑल्सो मैक्सिमम, velocity is maximum, and finally when the particle moves further up to A, once again the force increases. I mean यहाँ पर मैंने गलत कह दिया, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है तो फोर्स भी 0 हो जाता है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स 0 होने की वजह से वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता है। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है फोर्स बढ़ता है, लेकिन ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से वेलोसिटी कम होता है। तो रिमेंबर दिस, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस, फोर्स increases but velocity decreases, velocity कम होता है। तो ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया, लेकिन वेलोसिटी जो है वो कम हो गया, ये आपको याद रखना है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंडीशंस होती है। आगे बढ़ते हैं, अभी एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या होता है। सो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड? Amplitude is the maximum displacement from the mean position. So we have two words in this equation, two new terms. One is displacement. Displacement is the distance from the mean position. A is the amplitude. Amplitude is the maximum displacement from the mean position. Omega t plus phi is the phase. What does phase mean? Phase is a quantity that gives information about position and direction. फिर से हम एक बार हमारा ये एग्जाम्पल अगर कंसीडर करते हैं, हमारा पार्टिकल ए और बी के बीच में ऑसिलेट करता रहता है, ओ मीन पोजीशन है, तो किसी टाइम पर अगर मैंने आपको कहा कि 3 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ पर है, तो तीसरे सेकेंड पर पार्टिकल हो सकता है कि यहाँ पर है किसी पॉइंट पी पर, तो मुझे उसकी पोजीशन पता चल गई, तो ओमेगा टी प्लस फाइव से मुझे पोजीशन समझ में आता है। अगर मैं ये पूछता हूँ कि 3rd सेकेंड में, तीसरे सेकेंड में जब पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, तीसरा सेकेंड जब होता है तो पार्टिकल कहाँ है, ऐसे में पूछता हूँ तो आप बोलते हो कि पार्टिकल पी पर है। अच्छा, पी पर है, ऑल राइट, चलो ठीक है, तो मुझे पोजीशन के बारे में समझ में आ गया। फिर मैं पूछता हूँ कि वो पी पर है, बात ठीक है, लेकिन वो किस तरफ जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है कि ओ की तरफ जा रहा है।
तो आपको ओमेगा टी प्लस फाइव से ये भी समझ में आ सकता है कि शायद हो सकता है पार्टिकल पी से बी की तरफ जा रहा है, या ये भी हो सकता है कि उसका ऑसिलेशन खत्म हुआ और वो ओ की तरफ आ रहा है। तो कुछ भी हो सकता है, वो हमें इसकी वैल्यू पर से ही पता चलेगा। तो इक्वेशन में जब हम टी की वैल्यू डालेंगे, ओमेगा की वैल्यू डालेंगे और फाई की वैल्यू डालेंगे, तो फिर बाद में हम ये पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x मिलेगा। वो x से हम ये समझ सकते हैं दो बातें, कि पहली बात तो पार्टिकल किस तरफ है और दूसरी बात उसका डायरेक्शन। याद रखो x इज डिस्प्लेसमेंट एंड सो इट मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, but usually we are only discussing magnitude, so I don't put the vector quantity. So that is about phase. Now in this phase you have got two terms once again. Omega, as I have already told you, it is angular frequency, and phi is called as initial phase, also called as epoch. पार्टिकल ने अपना ऑसिलेशन कहाँ से शुरू किया? अगर पार्टिकल ने अपना ऑसिलेशन ओ से शुरू किया है तो उसका इनिशियल फेज 0 है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स ऑसिलेशन फ्रॉम मीन पोजीशन देन इनिशियल फेज इज 0, तो फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी और फिर हमारा इक्वेशन बन जाएगा a cos ओमेगा t। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय हम इसी इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द प्रॉब्लम, सो यू हैव टू बी केयरफुल। सो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, वी राइट व्हेन इनिशियल फेज इपोक इज 0। हो सकता है कि पार्टिकल ने अपना ऑसिलेशन a से शुरू किया हो सकता है कि पार्टिकल का ऑसिलेशन b से शुरू किया हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप झूले पर स्विंग पर झूलते हो तो आप मीन पोजीशन पर होते हो और अपने पैरों से फोर्स अप्लाई करना शुरू करते हो, तो आपकी इनिशियल पोजीशन कहाँ थी? मीन पोजीशन पर। तो आपका इनिशियल फेज यानी कि इपोक 0 हो गया। लेकिन एक छोटा बच्चा जब झूले पर होता है तो उसके पापा झूले को पहले पीछे ले जाते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, तो उसका ऑसिलेशन जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर से शुरू हुआ, तो उसका इपोक 0 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। So that is about initial phase. So students, I hope you understand the different parts of this equation. It is very important. You will have problems based on the different parts of this equation. You must pause your video and copy this. And then I will proceed further with the next topic, that is the velocity of simple harmonic motion. What we studied in this was displacement. The equation of simple harmonic motion gives us displacement of simple harmonic motion. Now we will study about displacement. So copy this, pause your video and then take a screenshot or copy it in your notebooks, and then I will proceed with displacement. Now students, let us proceed with velocity of simple harmonic motion. Now before I proceed with velocity, I want once again to revise the equation of displacement. What is the equation of displacement? X is equal to a cos omega t plus phi. This is the equation of displacement of simple harmonic motion. बच्चों, यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया था ना, वो सारा मैंने लाइव लेक्चर में भी आपको पढ़ाया था, इसलिए आपको यहाँ तक कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। लेकिन यहाँ से आगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट्स आपके लिए न्यू है, सो यू शुड बी पेइंग अटेंशन एंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग फर्दर नाउ। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस प्रोसीड विथ वेलोसिटी। देखो, आप लोगों ने मैकेनिक्स में स्टडी किया है कि जब किसी इक्वेशन का किसी मोशन का डिस्प्लेसमेंट का अगर आपको इक्वेशन दिया है और अगर आपको वेलोसिटी ढूंढना है तो आप क्या करोगे? आप इसका डेरिवेटिव करोगे। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज
of displacement. And so average velocity अगर आपको लिखना है, average velocity is denoted like this, or you may write V bar is equal to delta x by delta t. And if delta t tends to 0, if the time interval is very very small, then you have instantaneous velocity and that is given by dx by dt. आप इसका डेरिवेटिव करोगे। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं तो चलो देखते हैं। आपको पता है बच्चों कि cos थीटा का डेरिवेटिव में एक बार फिर से आपको याद करवा दूं कि डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यूजुअली थीटा नहीं लिखते हैं, मैथमेटिकली जब हमको लिखना है तो मैंने आपको x ऐसे समझाया था, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। लेकिन अगर x की बजाय अगर कोई फंक्शन आ जाता है, मैं एक बार फिर से डेरिवेटिव आपके साथ रिवाइज कर रहा हूं, इंस्टेड ऑफ x इफ यू हैव सम फंक्शन ऑफ x, लाइक फॉर एग्जांपल यू वांट टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ cos 3x square minus 7, then derivative of cos x is minus sin x, so derivative of cos 3x square minus 7 will be minus sin 3x square minus 7 multiplied by, इतना कर देने के बाद आपको x की बजाय जो एक्सप्रेशन आया है, in the place of x whatever expression is given, you have to once again differentiate that. आपको फिर से इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव फिर से कैसे करोगे आप, तो ये 3 जैसे थे वैसा रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 7 का डेरिवेटिव होता है 0, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x इज 6x, सो यू विल हैव माइनस 6x साइन 3x स्क्वायर माइनस 7। बच्चों मैंने सिर्फ एक बार फिर से डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट आपके साथ रिवाइज किया है। यू आर सपोज टू नो दिस कंसेप्ट वेरी वेल, एंड इफ यू डोंट नो दिस, वंस अगेन गो बैक टू द वीडियो ऑफ डेरिवेटिव्स विच आई हैव पोस्टेड ऑन यूट्यूब एंड सी दैट, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। एक बार उसको फिर से चाहे तो रिवाइज कर लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो अब देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ जो इक्वेशन है उसमें हमें वेलोसिटी ढूंढना है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमारे पास है, सो वेलोसिटी का इक्वेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। दैट मीन्स v इज इक्वल टू, अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है तो a विल रिमेन एज इट इज, cos ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। याद करो फिर से मैं बता दूं आपको, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो cos ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मल्टीप्लाइड बाय, हमको फिर से ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब इस बार याद रखो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है t, टाइम। तो जैसे 5x प्लस 9 का अगर आप डेरिवेटिव करते तो 5 मल्टीप्लाइड बाय x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस 9 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो आप इसका आंसर लिखते 5। उसी तरह से ओमेगा टी प्लस 5 का अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो ये हो जाएगा ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 1, टी का डेरिवेटिव 1 होगा बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लस 5 इज अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 होगा, सो यू विल हैव ओमेगा टी प्लस 5 का डेरिवेटिव ओमेगा। तो जब मैं इसका फिर से डेरिवेटिव करता हूं तो मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो फाइनली आई हैव v इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन था उसमें ए क्या डिनोट करता था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता था, उसी तरह से ए ओमेगा क्या डिनोट करेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी को डिनोट करेगा। माइनस साइन से हमको ये समझ में आता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट होता है। वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट।
यानी कि अगर मेरा पार्टिकल ऑसिलेट करता है ओ से ए और बी के बीच में, तो जब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसे होता है तब वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है। वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है वैसे वैसे वेलोसिटी कम होता जाता है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, वेलोसिटी कम होता है। फाइनली जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगा तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अभी हमने फाइंड किया वेलोसिटी, नेक्स्ट हमको ढूंढना है एक्सेलरेशन। और भी कुछ चीज़ें हमको समझनी है। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, ये सारे कंसेप्ट हमको समझने हैं। लेकिन पहले मैं तीनों इक्वेशंस बना लेना चाहता हूँ। सो मैंने आपको इसमें वेलोसिटी का इक्वेशन एक्सप्लेन किया है। वेलोसिटी का इक्वेशन है -a ओमेगा साइन ओमेगा t + 5। रिमेंबर दिस इक्वेशन एंड आई विल प्रोसीड फर्दर विथ the equation of acceleration. I want you to copy this from the board and I am going to rub the board. Remember this equation of velocity -a omega sin omega t + 5, and we will now from this find out the expression, the equation for acceleration. Please copy this fast. चलो स्टूडेंट्स, हम एक्सेलरेशन का इक्वेशन अभी बनाते हैं, डिराइव करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन स्टडी किया था, x = cos ओमेगा t + 5। फिर हमने वेलोसिटी का इक्वेशन स्टडी किया, v = -a ओमेगा sin ओमेगा t + 5। आगे बढ़ते हैं, अब हम एक्सेलरेशन का इक्वेशन स्टडी करते हैं। आपको पता है व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज of velocity. Acceleration is the rate of change of velocity. Now, so you can write a is equal to, small a denotes acceleration, is equal to dv by dt. यानी कि हमको v का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो आई कैन राइट a is equal to, देखो अभी इसका डेरिवेटिव करना है। फिर से एक बार याद करवा दूं, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, लेकिन x की बजाय in the place of x if you have some other expression, say for example you have sin 7x - 9, then the derivative will be cos 7x - 9 multiplied by, हमें फिर से 7x - 9 का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो 7x का डेरिवेटिव करने के लिए आप क्या करोगे, 7 × 1 करोगे। 9 का डेरिवेटिव होता है 0, 7 × 1 - 0 होता है 7। सो दिस आंसर बिकम्स cos, ये 7 में आगे लिख दूं तो 7 cos 7x - 9। इस तरह से आप डेरिवेटिव करते हो sin 7x - 9 का। अभी हमारा जो v है उसका फॉर्मूला है -a ओमेगा sin ओमेगा t + 5। तो हम क्या करेंगे, ये -a ओमेगा जैसा था वैसा लिख देंगे, -a ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय sin ओमेगा t + 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा cos ओमेगा t + 5 मल्टीप्लाइड बाय, अब हमको ओमेगा t + 5 का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब ओमेगा t + 5 का डेरिवेटिव जब आप करते हो बच्चों, तो ओमेगा t का डेरिवेटिव होगा ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस द डेरिवेटिव ऑफ 5 इज 0, सो यू विल हैव ओमेगा। That means I will multiply with omega here. So I have the equation of acceleration is -a omega multiplied by omega. So I can write minus omega square. Omega into omega is omega square a cos omega t plus 5. So I have a is equal to minus omega square a cos omega t plus 5. Now this is the equation of acceleration of simple harmonic motion. So students, in this video I have discussed with you three equations. I have discussed the equation of displacement, x is equal to a cos omega t plus 5. I have discussed with you the equation of velocity,
v is equal to minus a omega sin omega t plus phi, and I have discussed with you the equation of acceleration, that is minus omega square a cos omega t plus phi. These three equations you must learn by heart. They will be very 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 helpful in solving problems. एक बात. दूसरी बात, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इन इक्वेशंस के बारे में हम डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं. इनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, वो सारा हम स्टडी करने वाले हैं. तो ये इक्वेशंस अगर आपको याद नहीं है तो नेक्स्ट इक्वेशन आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा. सो सी टू इट, प्लीज रिमेंबर दिस. यू नो दिस इक्वेशंस वेरी वेल, यू लर्न दिस इक्वेशंस बाय हार्ट. फिर से एक बार मैं याद करवा दूं कौन से तीन इक्वेशन है. इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाई, एंड इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा t प्लस फाई. बिफोर आई एंड, वन लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से. डू यू नोटिस समथिंग हियर? a cos ओमेगा t प्लस फाई and here also a cos omega t plus phi. That means I can write acceleration is equal to minus omega square x, because a cos omega t plus phi तो x की वैल्यू है. यानी कि अब मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल टू x है, और मैं माइनस एक्स लिख दूं. एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. अब x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. और एक लास्ट फाइनल वर्ड, आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. सो आई कैन राइट f इज इक्वल टू माइनस, ये m लिख दूं मैं, और a की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो ओमेगा स्क्वायर एक्स और माइनस के साइन में यहाँ लिख दूँ, तो f इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स. अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो बच्चों, आई कैन राइट f प्रोपोर्शनल टू फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. हो गया ना? सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और ये माइनस के साइन अगर मैं लिख देता हूं तो उससे हमको ये समझ में आता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये एक बात है. और दूसरी बात, थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था f इज इक्वल टू माइनस के एक्स. के इज कॉल्ड एज फोर्स कॉन्स्टेंट. और अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके देखो तो k की वैल्यू हो जाएगी m ओमेगा स्क्वायर. सो k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर. रिमेंबर दिस. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. In my next video, I am going to discuss more on K. I am going to discuss more on the consequences of A, V, and A. And displacement. So that is all for the video today. In this video we have studied about displacement, we have studied about velocity, we have studied about acceleration, and finally we saw very fast how acceleration is directly proportional to displacement. And since force is mass into acceleration, force is also proportional to displacement, that satisfies the condition of simple harmonic motion. That is all for this video today. See you very soon with my next video. Bye everybody.